Good afternoon, class. Hello. Good afternoon, class. Good afternoon, sir. So now we will discuss the tutorial 4. So just wait, I am trying to share the tute sheet. सर काफी क्वेश्चन है इस बार की ट्यूट शीट मतलब 22 अराउंड क्वेश्चन है. Actually, that is for the practice, and you need to attempt only 10 questions. For यस सर. the submission purpose, you need to only attempt 10 questions out of whatever given. Clear? There is no issue. आपको केवल 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मतलब लिखने हैं और उसको सबमिट करना है. Just wait, I'm sharing. So previously, up to which question we have discussed? I think the fifth question have been over. I think. Hmm? Up to fifth we have done. I think this is shared to you. आप सभी को दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा है? लो एक नहीं सर, मिनट. शेयर नहीं हो रहा. Now is it visible to all of you? यस सर, नाउ विजिबल. Okay, so just I am asking that up to which question we have covered. Okay, so I have a solution of these few questions. So I am just देखिए जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिलीवरी. सो आई थिंक it may have been covered, है ना. And I will just show you the solution of this also and explain the type of data delivery for जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिलीवरी है. इसमें मेन चीज यही है कि जो डायरेक्ट डिलीवरी सिस्टम होता है पैकेट्स का, वो सेम फिजिकल नेटवर्क में होता है. जैसे सेम फिजिकल नेटवर्क में इफ वी आर हैविंग टू होस्ट, where host and destinations are having in the same physical network, so they can communicate their packet clear into the same physical network. But if the physical network is different for host and routers or host, clear, and the communication is done in the different physical network, so we can say this is an indirect delivery of the packet. Clear? I will show you with the diagram. Just अभी थोड़ी देर में मैं आपको शेयर करता हूँ. जस्ट विद इन a few seconds I will share you the diagram with the diagram how the direct and indirect delivery process may happen. Clear? Now the second question is explain the types of data delivery for different layers using suitable diagram. So आप में से किसी ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया? टाइप्स ऑफ डेटा डिलीवरी फॉर डिफरेंट लेयर्स यूजिंग सुटेबल डायग्राम. नहीं सर, नहीं किया. Okay. So actually we have some theoretical questions. So kindly I am requesting you all kindly attempt these questions with their own. Clear? अपने आप से पहले कोशिश करो. अगर पढ़ाने के बाद अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, then I will, especially the theory questions will definitely be attempted properly. Clear? आपका ये हो जाएगा theory वाला portion. बाकी जो कुछ न्यूमेरिकल होंगे वो तो हम बता ही देंगे आपको. Especially the theory portions which
we have covered in the lecture, so try to attempt that particular question. Okay, so I will tell you, इसको भी बता देंगे हम आपको. This question number 3 है जो why routing is important in a computer network. So today I have just discussed why we use routing process. So routing exactly belong to what? The communication between two ends, that is host or destination or router to router communication. So routing is a process to perform the packet transmission from one end to another end, yes, source to destination. Clear? So it is important just because of the data delivery process as well as to remove the congestion, and routers exactly uses the routing tables that exactly tells which packet need to communicate further. Yeah. So routing table use करता है router to update their values, and it decides which packet would be accepted or terminated. Clear? So routing is very important, and इसका डायग्राम भी हम लोगों ने देखा है कैसे राउटर जो है पैकेट को एक्सेप्ट करता है, देन डिलीवर करता है डेस्टिनेशन की तरफ, फॉरवर्डिंग एंड डिलीवरिंग. क्लियर? सो हाउ पैकेट एक्सेप्ट करता है, कैसे उसको फॉरवर्ड करता है. तो दीज ऑल आर द प्रोसेसिंग ऑफ द राउटर. क्लियर? इसके बाद है एक्सप्लेन फिक्स्ड और स्टैटिक एल्गोरिथम. तो फिक्स्ड एल्गोरिथम भी हम शायद आप बता चुके हैं विथ एग्जांपल्स. तो मैं आपको जरा सा ये कुछ क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ इसमें सोल्यूशन वाइज. जस्ट वेट. Especially question number 4th and 5th. I'm just trying to show you. Just wait, I am trying to share you. Is it visible to all of you? So, Yes, sir. yeah, in this portion we will cover the static and dynamic routing algorithm. Clear? So, if we talk about types of routing algorithm, if someone asks you what are the types of routing algorithm, routing तो सभी को पता ही है. और अगर आपसे कोई पूछता है what are the types of routing algorithm, exactly two types of routing algorithm is there. First one is the non-adaptive, that is also known as static algorithm, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है. And the second one is the adaptive or dynamic algorithm. Clear? Static और dynamic दोनों ही आपसे पूछा जा सकता है. So static algorithm exactly क्या होता है कि इसकी definition लिखी हुई है आपको सामने दिख रही होगी. That is static routing algorithm. Exactly in this, the routing decisions are not based on the measurements or estimates of the current traffic and topology. इसका मतलब क्या है, जो भी routers हैं, they are not taking the routing decision based on measurements or estimates of the current traffic and topology. कहने का मतलब है कि जो भी routers हैं वो अपने जो decisions लेते हैं पैकेट को रूट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए या पैकेट को डिस्कार्ड करने के लिए, दैट इज नॉट बेस्ड ऑन द, वो इस बेसिस पे नहीं लेते कि करंट ट्रैफिक क्या ऑफर्ड हो रहा है या नेटवर्क में क्या करंट ट्रैफिक है या कौन सी टोपोलॉजी को वो यूज कर रहा है. ठीक है? तो दोनों चीजों के बेसिस पे, मतलब एक तरह से नेटवर्क इज स्टैटिक नाउ. तो जो भी राउटर्स हैं दे आर ओनली टेकिंग डिसीजन ऑन देयर ओन, बट दे आर नॉट फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क ट्रैफिक. अपने नेटवर्क ट्रैफिक के अकॉर्डिंग वो फ्लेक्सिबल नहीं है, दे आर स्टैटिक इन नेचर. क्लियर? सो इसको ही हम लोग ये स्मॉल नेटवर्क के लिए जनरली यूज किया जाता है. तो हम लोग लार्ज नेटवर्क में यूज नहीं करते हैं. तो इसका मेन डिसएडवांटेज क्या होता है कि इसकी इनएबिलिटी है टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू द नेटवर्क फेलियर. मतलब अगर नेटवर्क फेल हो जाए कहीं
तो वो उसको क्विक रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है स्टैटिक राउटर, ठीक है भाई। डायनेमिक में केस में क्या होता है, इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। ये इसमें जो राउटर डिसीजन लेता है वो टोपोलॉजी या ट्रैफिक के चेंजेस के अकॉर्डिंग लेता है। जैसे मान लीजिए ट्रैफिक ऑल ऑफ ए सडन चेंज हो गया, कहीं ऐसा तो है नहीं कि ट्रैफिक हमारा कंसिस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इफ ट्रैफिक चेंज in several iterations, so the router will take decision accordingly, ठीक है। राउटर अपने डिसीजंस को चेंज कर सकता है। ट्रैफिक ज्यादा है तो इट विल जस्ट ट्राई टू चेंज दियर डिसीजन टू एक्सेप्ट द पैकेट। अगर ट्रैफिक लो है या कांस्टेंट है तो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा। तो दिस इज द डायनेमिक टाइप ऑफ एल्गोरिथम। क्लियर मींस इन दिस वी कैन से द नेटवर्क इज फ्लेक्सिबल। So this is a dynamic algorithm. ये आप देख सकते हैं, दिस इज द डायग्राम फॉर द स्टैटिक routing. You can see this is the type of static routing process, ठीक है। इसमें it is a we are having some 6 nodes. You can see we are having 1 2 3 4 5 6, these are the nodes. Clear? इसको हम लोग राउटर्स भी बोल सकते हैं नोड्स को। क्लियर? एंड वी आर हैविंग सब कनेक्शंस फ्रॉम ईच ऑफ देम, कनेक्शंस भी हैं सभी में। क्लियर? So this is the type of, and in the right side of the diagram there is a central routing directory which exactly represent the path which is provided to that particular routers. Clear? So it just so exactly इसमें क्या है, रूट्स हमारे फिक्स्ड है क्योंकि स्टैटिक राउटिंग है तो रूट्स आर फिक्स्ड। क्लियर? they may only change if there is a change in the topology of the network. अगर टोपोलॉजी में कुछ चेंज होगा तो वो चेंज होंगे, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। तो फिलहाल अगर टोपोलॉजी हमारी सेम है तो अगर नेटवर्क में कुछ भी लोड आ रहा है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। नेटवर्क मतलब उससे कोई हमारे राउटिंग डिसीजन पे इफेक्ट नहीं आ रहा है। A central router matrix is created based on the least cost method and which is stored to a network's control center. This is the matrix source for each source destination pair of nodes that are identified to the next node on the route. Clear? अब इसमें भी हमारे कुछ स्टैटिक एल्गोरिथम है जो एग्जांपल्स जिनके गिवन है आपको, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, फ्लडिंग एंड फ्लो बेस्ड राउटिंग। क्लियर? तो हमारे पास ये 3 एग्जैक्ट स्टैटिक एल्गोरिथम के एग्जांपल हैं। शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, उस क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा गया था What are the examples of the static algorithm? तो ये आपके एग्जांपल है, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, फ्लडिंग एंड फ्लो बेस्ड राउटिंग। अब इसको आपको अभी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि आपसे केवल एग्जांपल पूछे गए हैं। यू नीड नॉट टू एक्सप्लेन ऑल द एग्जांपल्स, ठीक है। तो आपको स्टैटिक राउटिंग को एक्सप्लेन करना था एंड उसके एग्जांपल्स देने थे। तो ये 3 एग्जांपल हो गए जो मैंने आपको दिखाए अभी, शॉर्टेस्ट पाथ, फ्लडिंग एंड फ्लो बेस्ड राउटिंग, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ में भी ये सब आ जाएगा आपका, बेलमैन फोर्ड और ये सारे इसी के अंदर आ जाएंगे। ये हमें डिटेल में भी फिलहाल नहीं जाना है। फिर आपका एक क्वेश्चन और है इसी ट्यूटोरियल में फ्लडिंग से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्लडिंग एंड व्हाई फ्लडिंग इज नॉट प्रिफर्ड फॉर नेटवर्क राउटिंग। Am I audible properly to all of you? Yes, sir. ओके एक क्वेश्चन नंबर 5 है, अभी मैं दिखा देता हूँ ट्यूब में, वो फ्लडिंग पे बेस्ड है। तो फ्लडिंग इज आल्सो ए टाइप ऑफ स्टैटिक राउटिंग एल्गोरिथम। क्लियर? इट इज ए एग्जांपल ऑफ स्टैटिक राउटिंग। तो फ्लडिंग भी आपसे पूछा गया है, ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्लडिंग इन स्टैटिक राउटिंग एंड व्हाई इट इज नॉट प्रिफर्ड फॉर द राउटिंग पर्पस। तो इसमें रीजन क्या है कि इसमें फ्लडिंग के केस में कोई भी नेटवर्क इंफॉर्मेशन नहीं होती, नो नेटवर्क इंफॉर्मेशन इज देयर रिगार्डिंग फ्लडिंग, ठीक है। तो फ्लडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत उसको कोई भी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं होती। मीन्स जब भी कोई इनकमिंग पैकेट आएगा किसी नोड पे तो वो हर एक आउटगोइंग लाइन की तरफ भेज दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए
कि हमको, जैसे मैं अपनी बात करूं, मुझे कहीं पहुंचना है, ठीक है, आई नीड टू गो एनीवेयर, कहीं मैं जाना चाहता हूं, और उस वहां तक जाने के आई हैव मल्टीपल पाथ। क्लियर? कुछ हमारे पास लंबा रास्ता भी है, कुछ हमारे पास छोटा रास्ता भी है, जिससे होके मैं उस अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकता हूँ। आई हैव मल्टीपल पाथ्स टू रीच द डेस्टिनेशन। तो जब भी मतलब मैं यहाँ से अगर अपना इनिशिएट करता हूँ प्रोसेस, तो आई मे फॉलो एनी पाथ। ठीक है, मैं किसी भी पाथ को फॉलो कर सकता हूँ, बट स्टिल आई विल ट्राई टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ। तो सपोज जो हमारा सोर्स है, यहाँ तो मैं अपनी अकेले सिंगल पर्सन की बात कर रहा हूँ। पैकेट्स के केस में क्या होता है, सोर्स एंड से मल्टीपल पैकेट जनरेट होते हैं, और सपोज दे वांट टू गो ऑन द सेम डेस्टिनेशन, सो दे ऑल विल फॉलो व्हाट, ऑल द पाथ्स एट ए टाइम। तो ऑल द पाथ्स को फॉलो करेंगे, तो कुछ कहीं इधर से जा रहे हैं, कुछ उधर से जा रहे हैं, कुछ बीच में से जा रहे हैं, कहीं से भी जा रहे हैं, सब सारे पाथ से होके जा रहे हैं। तो ऐसा होगा कि कुछ तो आपके उसमें उसी पाथ में से कुछ आपके शॉर्टेस्ट पाथ भी है, तो कुछ पैकेट जो होंगे वो शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू निकल जाएंगे, लेकिन कुछ आपके लॉन्ग पाथ भी ट्रेवल करके वहां तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो इसी को, इसमें क्या होता है, जब लॉन्ग पाथ ट्रेवल करके पहुंचेंगे तो वो दे विल कंज्यूम लॉट्स ऑफ टाइम। क्लियर? That's why I'm saying all possible routes between source and destination are tried. ये देख सकते हैं आपने, एक पॉइंट लिखा हुआ है, all possible routes between source and destination are tried. A packet will always get through if a path exists. ठीक है, मतलब अगर पाथ एग्जिस्ट करेगा तो वो हमेशा उसके थ्रू ऑलवेज गेट थ्रू फ्रॉम इट। क्लियर? As all routes are tried, at least one path will pass through the shortest route. ये सारे रूट्स को फॉलो कर रहे हो तो कोई ना कोई एक पाथ ऐसा जरूर होगा जो शॉर्टेस्ट रूट होगा। सो ऑल नोड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड आर विजिटेड। सारे के सारे नोड्स जो भी कनेक्टेड है या नहीं भी कनेक्टेड है, वो सब आपके डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस पाथ रास्ते में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि सारे रास्ते जब ट्रेवल हो रहे हैं तो जो भी नोड उन सब रास्ते में होंगे उस सब के सब एक बार टच में जरूर आएंगे। ठीक है, तो इसकी मेन लिमिटेशन क्या है फ्लडिंग की? इट जनरेट्स लास्ट वास्ट नंबर ऑफ डुप्लीकेट पैकेट्स, मतलब बहुत सारे डुप्लीकेसी क्रिएट होती है इसमें, इसीलिए इसको प्रेफर नहीं किया जाता। इट इज नेसेसरी टू यूज सुटेबल डैम्पिंग मैकेनिज्म टू ओवर द टेम्पटेशन। वन सिंपल मैकेनिज्म इज टू यूज हॉप काउंट। A hop counter may be contained in the packet header, which is decremented as each hop, with the packet being discarded when the counter becomes zero. Clear? सो हॉप काउंट एक मैकेनिज्म है जिसको यूज किया जाता है इस तरह की लिमिटेशन, इस तरह की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा दिस इज फ्लडिंग। फ्लडिंग एग्जैक्टली इज ए हाईली रोबस्ट एंड कुड बी यूज्ड टू सेंड इमरजेंसी मैसेजेस, स्पेशली मिलिट्री एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है, जहां पे आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है और डायरेक्टली पैकेट आ रहा है, उसको किसी भी रास्ते से डिलीवर कर दो। तो एक तरह से इमीडिएट प्रोसेस है जो आपको तुरंत का तुरंत उसको यूज कर लेना है। ठीक है ना, विदाउट एनी सोचे बिना कि अगर आपको कुछ सोचना पड़ रहा है तो यू कांट यूज इट। आपको कुछ भी इमरजेंसी में अगर मैसेज को डिलीवर करना है तो यू नीड नॉट वरी अबाउट व्हाट आर द शॉर्टेस्ट पाथ, और आपको कुछ नहीं पता तो आप जितने भी पाथ है सब तरफ भेज दीजिए। उसमें अगर कोई शॉर्टेस्ट पाथ होगा हिट एंड ट्रायल मेथड में तो वो उसको पिक कर लेगा। ठीक है ना, इट मे बी यूज्ड टू इनिशियली सेट अप द रूट ऑन ए वर्चुअल सर्किट। फ्लडिंग ऑलवेज चूज द शॉर्टेस्ट पाथ सिंस इट एक्सप्लोर्स एवरी पॉसिबल पाथ इन पैरेलल। ये कोशिश वही करेगा शॉर्टेस्ट पाथ को चूज करने की, लेकिन सारे पाथ को ट्राई करेगा। कैन बी यूजफुल फॉर द dissemination of important information to all nodes. So ये आपका फ्लडिंग का कॉन्सेप्ट है। दिस इज फ्लडिंग। इज इट क्लियर? तो ये आपका फ्लडिंग हो गया। दिस इज द क्वेश्चन। अब मैं आपको एक और फिर से ट्यूट शीट दिखाता हूँ, इसमें देखिए। सर स्टडी हेलो, मटेरियल यूनिट 4 का शेयर कर दीजिएगा। हाँ आई विल शेयर यू। अभी एक्चुअली स्टार्ट हुआ है तो इसमें जहां तक हमने पढ़ा दिया है आई विल शेयर यू डेफिनेटली। सो डोंट वरी अबाउट दिस, आई विल शेयर यू।
सो इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर देखिए फिफ्थ था आपका, फिफ्थ आपका हो गया है, व्हाट इज फ्लडिंग एंड व्हाई फ्लडिंग टेक्निक इज नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर द राउटिंग। सो वी हैव डिस्कस्ड कि फ्लडिंग होता क्या है और हम इसे क्यों यूज नहीं करते हैं जनरली। क्यों यूज नहीं करते हैं? क्योंकि एट ए टाइम डेटा जो होता है वो सारे पाथ को फॉलो करता है। It doesn't initiated for the shortest path. It just try to all the paths to reach the destination. So it may create congestion or duplicacy of the packet. Clear? So to avoid this problem, we use hop count method. And ये सारी चीजें हो गई flooding से related. Now the question is plain fixed or static routing algorithm. Clear? So ये हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया, फिक्स्ड और स्टैटिक राउटिंग एल्गोरिथम। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है व्हाट इज कंजेशन, एक चीज मुझे और आपको दिखानी थी इसमें, जस्ट वेट। Just wait, I am trying to show you. Wait. Okay, so I am sharing. Just wait. So ये दिख रहा है सभी को? Yes, sir. ओके, सो इसमें देखिए वी आर टॉकिंग अबाउट द routing and congestion control. Clear? So in this regard we have questions in your tube sheet that what is congestion and why what are the congestion control techniques, okay, and what are the causes of congestions. So these all things have been covered here in this particular question. What are the effect of congestion? ठीक है, ये सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। And one more thing I want to share you. Just wait. Okay, so there is a questions in your tutorial sheet. That is question number 6. What do you understand by congestion? तो कंजेशन हमने आप लोग को बताया ही था कंजेशन क्या होता है। ठीक है, कंजेशन आपका नेटवर्क में तभी आता है जब या तो ट्रैफिक एक लिमिट से ज्यादा आ जाए, मतलब नेटवर्क शुड गेट ओवरलोडेड, ठीक है, तो आपका कंजेशन क्रिएट होता है। और या फिर आपका ऐसा भी हो सकता है कि डुप्लीकेसी ऑफ द पैकेट्स होने लगे। ठीक है, एक क्यू फॉर्म होने लगे और क्यू की वजह से बहुत सारे पैकेट डुप्लीकेसी क्रिएट हो जाए और इट विल आल्सो फॉर्म द
loss of packet, and it will create the congestion in the network. Clear? So ये सारी चीजें हैं congestion से regarding. और causes में सारे इसमें आपको cause मिल जाएंगी. देखिए सारे causes दिए हुए हैं. If there is insufficient memory to hold these packets, मतलब अगर मान लीजिए नेटवर्क हमारे पास है, नेटवर्क में राउटर्स हैं, राउटर्स कैरी द बफर है ना, बफर्स उनके पास होता है, मेमोरी बफर्स. तो अगर मान लीजिए जो बफर्स होते हैं उसी में वो पैकेट्स को कैरी करते हैं, जो भी सोर्स से आ रहा है पैकेट या डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा है. तो राउटर्स हैविंग द बफर एंड द बफर्स कैरी द सोर्स एंड डेस्टिनेशन पैकेट्स. क्लियर? तो मान लीजिए अगर इनसफिशिएंट मेमोरी है, ठीक है, होल्ड करने की राउटर्स के पास, तो क्या करेंगे? अगर उनके पास एक्सेस पैकेट आने लगा, मेमोरी से ज्यादा पैकेट आने लगा, जितना बफर की कैपेसिटी नहीं है, तो वो क्या करेंगे? पैकेट को ड्रॉप कर देंगे. तो दीज आर पार्ट ऑफ कंजेशन. ठीक है? तो या हो सकता है ऑल ऑफ ए सडन बहुत सारे पैकेट आ जाएं. ठीक है? तो इस तरह का केस जब अराइव होगा, तब हमेशा जान लीजिए कि कंजेशन हैपन होगा और ड्रॉप्स ऑफ पैकेट विल टेक प्लेस. So if the router have an infinite amount of memory, even then, instead of congestion being reduced, it gets worse, because by the time packet gets at the head of the queue to be dispatched out to the output line, they have already timed out, and duplication may also happens. Clear? एक तो ये हो गया जिसकी वजह से हम लोग कह रहे हैं कि व्हाट इज द कॉजेज ऑफ कंजेशन. दूसरा है स्लो प्रोसेसर. स्लो प्रोसेसर का मतलब ये है कि जैसे अगर जो आपने यूज किया हुआ है राउटर्स वगैरह की मैं जो बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो एग्जैक्टली क्या करता है? उसके पास राउटिंग टेबल होती है, एक बफर होता है, बफर इज द मेमोरी जहां वो पैकेट को स्टोर करता है सोर्स या डेस्टिनेशन की तरफ जाने. ठीक? जो पैकेट्स की क्यू लगती है, क्यू भी हमारी बफर्स में ही स्टोर होती है. ठीक है ना? राउटर के पास राउटिंग टेबल होती है जिसको अपडेट करता रहता है, जैसे जैसे जो पैकेट पास होता रहता है उसको वो अपडेट करता रहता है. ठीक है? और तो ये सारी चीजें, राउटर्स इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना इन द पैकेट ट्रांसमिशन. ठीक है? तो राउटर अगर ये प्रोसेसिंग जो कर रहा है, अगर स्लो प्रोसेसिंग करेगा, तो उसकी वजह से भी कंजेशन होने के चांसेस रहते हैं. तो इट में आल्सो क्रिएट द कंजेशन ड्यू टू स्लो प्रोसेसिंग ऑफ द राउटर्स. क्लियर? अगर बैंडविड्थ लो होगी, मतलब लाइन में जो हम लोगों ने बैंडविड्थ प्रोवाइड की है चैनल में, अगर वो कम है तो भी कंजेशन आएगा. क्लियर? ये सारी चीजें हैं मतलब कंजेशन क्रिएट करने के लिए. ठीक? So congestion tends to feed upon itself to get even worse. Routers respond to overloading by dropping packets. Yeah? When these packets contain TCP segments, the segment don't reach their destination. Yeah? And they are therefore left unacknowledged, which actually leads to timeout and retransmission. So the major cause of the congestion is often the busty nature of traffic. तो मेजर कॉज क्या है कंजेशन का? जो हमारे पास एक बार में ज्यादा ट्रैफिक आ जाता है, बस्ती ट्रैफिक. If the host could be made to transmit at a uniform rate, then congestion problem will be less common, and all other causes will not even lead to congestion, because other causes just act as an enzyme which boosts of the congestion and when the traffic is busty. Clear? तो ये सारे हमारे कॉजेज हैं. फिर व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ कंजेशन? इफेक्ट भी पूछा गया आपसे क्वेश्चन में. तो congestion affects two vital parameters of the network performance, namely throughput and delay. Congestion mainly दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है. एक तो होता है थ्रूपुट, जिसको हम लोग एफिशिएंसी बोलते हैं. दूसरा डिले. सेकेंड वन इज द डिले. क्लियर? इन सिंपल टर्म, throughput can be defined as the percent utilization of the network capacity. Yeah? जो नेटवर्क मतलब कहने का मतलब यह है कि हाउ नंबर ऑफ पैकेट ट्रांसमिटेड पर सेकेंड, पर मिनट या पर सेकेंड इज कॉल्ड द थ्रूपुट. ठीक है?
तो एक तो थ्रूपुट को अफेक्ट करता है कंजेशन सबसे ज्यादा, और दूसरा डिले, जो एक पैरामीटर डिले है, जो टाइम डिले, उसको अफेक्ट करता है। क्योंकि डिले को कैसे अफेक्ट करेगा, कोई बताएगा? डिले डिले कैसे अफेक्ट होगा कंजेशन की वजह से? कैन एनीवन एक्सप्लेन हाउ द डिले विल गेट अफेक्टेड विद द कंजेशन? पता नहीं सर। ओके, कैन एनीवन? थोड़ा लॉजिक लगाइए ना दिमाग में। डिले डिले कैसे आएगा सिस्टम के अंदर? डिले क्यों आता है? व्हाई द डिले हैपेंस इन द सिस्टम? कैन एनीवन एक्सप्लेन? किसी भी सिस्टम में डिले क्यों आता है? देखिए, कंजेशन हमने भी बताया था आपको कि चूंकि कंजेशन इसलिए होता है ना कि जैसे मतलब जब ओवरलोडिंग ऑफ द ट्रैफिक होती है, मतलब ट्रैफिक नेट चैनल के अंदर ज्यादा आ जाएगा तो हमारा कंजेशन होता है, ठीक है ना? तो डिले कब होगा? जब पैकेट स्मूथली रन नहीं कर पाएगा सिस्टम के अंदर, ठीक है, मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रेवल प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। इसका मतलब वो क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि पैकेट्स की एक्सेसिंग है चैनल, ठीक है। तो देयर विल बी ए फॉर्मेशन ऑफ क्यू, क्यू बन रहा है, तो कंजेशन की वजह से, तो इट में हैपेंस द डिले, तो ये डिले बढ़ाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा सिस्टम में, फिर डिले बढ़ जाएगा सिस्टम का। तो इफेक्ट ऑफ कंजेशन क्या है? कंजेशन होने से, भीड़ ज्यादा होने से, या पैकेट्स के ज्यादा कलेक्टिव होने से नेटवर्क में टाइम ज्यादा लगेगा पैकेट को ट्रांसमिशन होने में। तो जैसे वो पैकेट अगर विदाउट ट्रैफिक, विदाउट कंजेशन, अगर वो 5 सेकंड में ट्रांसमिट हो जाता, कंजेशन होने पे उसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। क्लियर? तो दिस इज द डिले। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? हेलो? हेलो? So यस। there is a figure is also there which I have already discussed you. ठीक है? तो इनिशियली आप देखिए, जो हमारा ये थ्रूपुट का प्लॉट है, दिस इज द प्लॉट फॉर द थ्रूपुट, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये वाला प्लॉट देखिए, इस प्लॉट में आपको दिख रहा होगा कि द वाई एक्सिस इज द एफिशिएंसी एंड एक्स एक्सिस इज द ऑफर लोड या चैनल कैपेसिटी। क्लियर? तो आप देखिए स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में हमारा प्लॉट इंक्रीज कर रहा है, स्टार्टिंग में प्लॉट हमारा लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है? और टू द मैक्सिमम लेवल ऑफ द कैपेसिटी और ऑफर्ड लेवल। यहाँ तक लीनियरली क्यों बढ़ रहा है कि मतलब हमारे पास चैनल की अवेलेबिलिटी है स्टार्टिंग में, जैसे से पैकेट धीरे धीरे आ रहा है, चैनल भी उस हिसाब से अवेलेबल है, बैंडविड्थ अवेलेबल है, और उसको हम प्रॉपरली डील कर लेगा। लेकिन जैसे ही वो मैक्सिमम पे पहुंचा, उसकी मतलब चैनल की रीच जो है मैक्सिमम जैसे पहुंच गई, वैसे ही क्या हुआ, अब वो सैचुरेट हो गया। क्लियर? नाउ अब उसके बाद अगर आपने उसको पैकेट ऑफर किया, तो इट विल ईदर ट्राई टू ड्रॉप द पैकेट्स और इट विल फॉर्म ए लॉन्ग क्यू। तो क्यू फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, जो भी आपका डेटा है वो धीरे धीरे लॉस होना शुरू हो जाएगा। लॉस होने का मतलब क्या है? इट विल ट्राई टू डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। देखिए धीरे धीरे एफिशिएंसी डाउन होने लगी, और एट द टाइम, बाय द टाइम पासिंग, इट रीचेस टू जीरो वैल्यू। एफिशिएंसी जीरो हो जाएगी। जीरो का मतलब समझ रहे हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम? हेलो? यहाँ पे आके जीरो हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम? डिले बहुत ज्यादा। नो, डिले तो ज्यादा होगा ही। जीरो एफिशिएंसी का मतलब ये है कि सिस्टम अनकंट्रोल्ड हो गया है। देखिए लिखा भी हुआ है, सिस्टम इज अनकंट्रोल्ड। ठीक है, अनकंट्रोल्ड का मतलब समझते हैं? या पैकेट जितने भी ऑफर्ड हो रहे हैं, चैनल उसको डील ही नहीं कर पा रहा है,
चैनल से इफेक्ट ही खत्म हो गया। पैकेट आ तो रहे हैं लेकिन डिलीवरिंग नहीं हो रही इसकी, वो आ रहे हैं या तो ड्रॉप हो जा रहे हैं या कुछ हो जा रहे हैं, लॉस हो जा रहे हैं इंफॉर्मेशन। तो इसका मतलब जीरो होने का मतलब अब वो सिस्टम एफिशिएंट रहा ही नहीं कि वो किसी भी तरह से किसी पैकेट को डील कर पाए। ठीक है ना, तो दिस इज कॉल्ड द अनकंट्रोल्ड कंडीशन। नाउ द पैकेट आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द राउटर्स, क्लियर, दे आर अनकंट्रोल्ड कंडीशन। और कंट्रोल कंडीशन यहाँ तक है, यहाँ पे अगर रहता दिस विल बी कंट्रोल्ड, यहाँ तक अगर रहता है आप देख सकते हैं दिस लाइन इट इज कंट्रोल्ड, लेकिन जैसे वो यहाँ वाली कंडीशन में आएगा वो अनकंट्रोल्ड कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द एफिशिएंसी प्लॉट। एंड आइडियली अगर देखा जाए तो आइडियल केस में तो वो यहाँ तक चला जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। आइडियली इट इज नॉट पॉसिबल, ideally it is possible, practically it is not possible, clear? And this is what average packet delay, अभी टाइम की मैं बात कर रहा था, how congestion affect the delay, डिले को कैसे अफेक्ट करता है। देखिए डिले हमारा देख सकते हैं स्टार्टिंग में, it is what this plot is the controlled line here, and this plot is what the ideal line, and this is the uncontrolled line। तो आप देख सकते हैं कि अनकंट्रोल्ड सिचुएशन कहाँ है, वेयर इज द अनकंट्रोल्ड सिचुएशन, मींस अनकंट्रोल्ड का मतलब है कि देखिए डिले को भी आपको नोटिस करना है। तो दिस इज द कंट्रोल्ड वे, इज द कंट्रोल्ड वे, दिस इज द अनकंट्रोल्ड वे, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अगेन द आइडियल कंडीशन, क्लियर। आइडियल कंडीशन में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ट्रैफिक लोड बढ़ रहा है वो स्टिल अपनी स्मूथ कंडीशन में है, एंड ऑल्सो द डिले इज व्हाट लेस, while in case of uncontrolled condition, अनकंट्रोल में देखिए जैसे ही पैकेट, जैसे ये लोड बढ़ा तो लोड यहाँ पर ही था, तभी हमारी कंडीशन अनकंट्रोल्ड हो गई, मींस लोड आपका यहाँ तक आया था, वैसे ही चैनल में ओवरलोडिंग कंडीशन हो गई, and this is called uncontrolled condition, means delay is again increasing, delay is increasing। ठीक है, अब जैसे भी थोड़ा सा भी ट्रैफिक में लोड बढ़ाएंगे तो डिले बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये देखिए। ठीक है, क्योंकि आप पैकेट को डील नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ आइडियल कंडीशन इट इज हैविंग ए लॉन्ग लेंथ ऑफ चैनल कैपेसिटी, यहाँ देखिए लॉन्ग लेंथ है चैनल कैपेसिटी, यहाँ तक वो ट्रैफिक लोड को बियर कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, while in case of controlled way, controlled का मतलब है यहाँ तक सपोज ये कंट्रोल्ड है, दिस इज द कंट्रोल्ड वे, एंड ऑल्सो द डिले इज हायर, तो मतलब डिले तो ज्यादा है लेकिन यहाँ तक वो कंट्रोल कर ले रहा है, कि क्यू फॉर्म हो रही तो डिले तो हो रहा है लेकिन पैकेट लॉस नहीं हो रहा, कंट्रोल हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो एक लिमिट को क्रॉस करेगा दिस विल बी द अनकंट्रोल्ड, क्लियर। तो दिस इज द कॉजेज ऑफ द कंजेशन। उसके बाद कंजेशन कंट्रोल की टेक्निक हमने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ओपन लूप, क्लोज लूप, दीज ऑल हैव बीन डिस्कस्ड, सो क्लियर। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, दीज ऑल थिंग्स हैव बीन अंडरस्टूड, समझ में आ गया सभी को जो भी मैंने समझाया है। हेलो, यस सर। तो देखिए इसमें कितने क्वेश्चन आपके कवर हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 कवर हो गया, 7th भी कवर हो गया, कॉजेज ऑफ कंजेशन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। 6th वाला था व्हाट इज कंजेशन, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ कंजेशन, ये भी हो गया। 7th हो गया एक्सप्लेन डिफरेंट कंजेशन कंट्रोल टेक्निक्स, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन लीकी बकेट एंड टोकन बकेट एल्गोरिथम फॉर कंजेशन कंट्रोल, ये हम लोगों ने आज ही डिस्कस किया था लेक्चर में। आज मैंने डिस्कस किया था ना एक्सप्लेन लीकी बकेट एंड टोकन बकेट एल्गोरिथम। हेलो, यस सर। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेन इंटर नेटवर्किंग विद सुटेबल डायग्राम। इंटर नेटवर्किंग हमने आपको बताया था